हम थोड़ा सा फाइनली स्टार्ट कर ही लेते हैं। ए लेवल की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ए लेवल की इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक, वैसे तो अभी हमारे अगले 3-4 लेक्चर जाएंगे इन जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। ओके, ओ लेवल्स में आपने तीनों चीजें पढ़ी हुई हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी होगी, इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, बट लाइक ए लेवल्स में जाहिर है उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन, उसका थोड़ा बेहतर वर्जन। And once we fully understand what is voltage, what is current, what is resistance and everything, और फिर इंशाल्लाह we'll move on to DC circuits again, but फिर वो आ जाएगा A level वाला DC circuits. Okay. So to begin with, like what is electric current? अच्छा, like it's extremely important कि you guys drop your answers on chat ना, because थोड़ा सा इसमें भी basically वो रिजवान भाई ने आपको लर्न दिया, मैं आपको अनलर्न सिखाऊंगा, समझ रहे हो आप मेरी बात? लाइक तो लर्निंग तो बहुत है जो आपने ओ लेवल में गलत गलत सीखा हुआ है। गिव योर ओ लेवल लर्निंग गाइस, ठीक है? तो लाइक कॉमन ये है कि वही सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट प्रोड्यूस करता है, बट electric current itself is a proper physical quantity, so it has to be defined properly. Like it is the rate of flow of charge, जो यहाँ पर हरीश शाह ने हमें explain किया, which is the correct answer. So electric current is the rate of flow of electric charge that passed a point. कि भाई आसान भाषा में कितना चार्ज गुजरा और कितने टाइम में गुजरा. So if I is current, Q is the charge that has passed, and T is the time, so that's I equal Q over T. कितना चार्ज मतलब कितना चार्ज इन कूलम्स, मतलब कितना कूलम चार्ज एक पॉइंट से गुजरा in a time t. So that's I equal Q over T. So current is a scalar quantity, and that is measured in amperes. 1 ampere is 1 coulombs per second, because charge is measured in coulombs and time is measured in seconds. Or you can say 1 ampere seconds equal 1 coulombs. ठीक है जी? तो आई थिंक यहाँ तक तो सबने थोड़ा ओ लेवल्स में ही पढ़ा ही होगा. अच्छा, कुछ एक दो बच्चों वाले क्वेश्चंस कराता हूँ ओ लेवल्स वाले, फिर थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चंस करते हैं. There is a current of 10 ampere through a lamp for 1 hour. Calculate how much charge flows through the lamp in this time. Like that's a very straightforward question. If you know I equal Q over T, where Q is the charge in coulombs, T is time, and I is current. So you have been given the current as 10 amperes and the charge as it is, and the time is 1 hour. So I better convert that into the SI unit, which is seconds. So I'm just gonna multiply it with 3600. तो ये 3600 वहां 10 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो चार्ज इज गोइंग टू बी 36,000 कूलम्स और 3.6 एक्सपोनेंट 4 कूलम्स, राइट? आसान है, सारे मेरे साथ हैं यहाँ तक. Current exists as a result of flow of charged particles called charge carriers. ठीक है? Current exist करता है because charge particles flow करते हैं. जैसे मोस्ट कॉमनली हमने क्या पढ़ा है भाई, मेटालिक कंडक्टर्स में इट्स द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्लोइंग, because the positive charges like protons are pretty much stuck inside the nucleus, so they cannot flow. So if the electrons are flowing, so electrons के अपने ऊपर एक चार्ज होता है ना, like so when they are flowing, so they are carrying charge with them, so they are called the charge carriers. So वो particles जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनके फ्लो की वजह से current produce होता है, they are called the charge carriers, obviously because the reason that they are carrying the charge with them. Okay, now each electron carries a tiny negative charge of approximately -1.6 exponent -19 coulomb. तो हमने पढ़ा है लाइक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1 और प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, ऐसा ही है ना? तो जो हम पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है और प्रोटॉन का चार्ज +1 है, नहीं, वो +1 e होता है या -1 e होता है. लाइक 1 कूलम नहीं होता इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज, लाइक उसको रिलेटिव चार्ज कहते हैं. लाइक रिलेटिवली आप एक को +1 एक को -1 कहते हैं, बट एक्चुअली अगर वो चार्ज आपने कूलम्स में निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 exponent -19 coulombs. So this
दिस चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव ई। समझ रहे हो आप मेरी बात? सो जब मैं कहता हूँ ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1, तो एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ -1 ई है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं कहता हूँ प्रोटॉन का चार्ज है +1, so that's +1 e, where the value of e is 1.6 exponent -19 coulombs. The magnitude of the charge. The magnitude of the charge E, that is 1.6 exponent -19 coulomb, is the elementary charge. इस चार्ज को हम कहते हैं elementary charge या fundamental charge कह सकते हैं। वैसे इसका सही नाम elementary charge ही है। अब आइडिया ये है कि लाइक दिस इज द elementary charge। अब इस यूनिवर्स में आपको कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मिलेगा ना, लाइक अकेला या कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप कहते हैं उसके ऊपर चार्ज आ गया, तो उस पर क्या या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इवेंचुअली चार्ज पार्टिकल्स ही फ्लो कर रहे हैं ना। तो एक पार्टिकल का जो चार्ज होगा ना, जो कि अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, फ्लो कर सकता है, उसका चार्ज या तो 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम होगा, या तो उसका मल्टीपल हो। मल्टीपल मतलब या तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर ले, या तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर ले, या तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर ले। इट्स बिकॉज इधर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इधर एन एटम कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, or it can gain 2 electrons, or it can gain 3 electrons. You cannot have an atom gaining 1.5 electrons. You cannot have an atom losing 2.5 electrons या _2 electron या 3.25 electron। इस तरह से नहीं होता ना। Either you get 1 electron, you get 2 electrons, or you get 3 electrons। समझ रहे हो? Like whether वो चार्ज पॉजिटिव है, प्रोटॉन की वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, it has to be the integer multiple of 1.6 exponent -19 coulomb। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो E सबसे पहले ध्यान में रखिए, एलिमेंट्री चार्ज इज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, एंड बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज is carried by particles, it must come in an amounts which are multiple of E। समझ रहे हो? Like 1 E 2, यानी for example you can have 1.6 exponent -19 coulomb, or you can have 3.2 exponent -19। You cannot have a value between 1.6 and 3। समझ रहे हो मेरी बात? इसकी इसकी अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं अक्सर बच्चों को ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऊपर एक कैंटीन है, जहाँ सबसे मशहूर बिस्किट कौन सी, सुपर बिस्किट ले लेते हैं। लेट्स से वो सुपर बिस्किट आपको सेल करते हैं, ठीक है? अब एक सुपर बिस्किट में ना 4 पैकेट्स होते हैं। अब नाउ यू कैन ईदर बाय एक एक सुपर बिस्किट के पैकेट में 4 बिस्किट्स होते हैं, ठीक है? ईदर यू कैन बाय 4 बिस्किट्स, और यू कैन बाय 8 बिस्किट्स, क्योंकि वो पैकेट की फॉर्म में आपको देगा ना। लाइक समझ रहे हो आप मेरी बात? इसीलिए हम कहते हैं लाइक या तो आप 4 बिस्किट्स लोगे, या तो 8 लोगे, या तो 12 लोगे, या तो 16 बिस्किट्स लोगे। अगर आप उसको जाके बोलो यार मुझे 2 बिस्किट दे दो, तो वो कहेगा नहीं भाई, लाइक हम इस तरह से बिस्किट सेल नहीं करते, ये एक वक्त में एक पैकेट सेल करेंगे ना आपको। समझ रहे हो? बिल्कुल वैसे इसीलिए हम कहते हैं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का मतलब ही यही है, क्वांट का मतलब पैकेट होता है, कि भाई चार्ज जो है ना वो पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। Like either 1.6 exponent -19 coulomb, or multiplied by 2, or multiplied by 3, or multiplied by 4। समझ लो, you cannot have a charge which is 1.2 times the elementary charge। So, for example, 3.2 exponent -19 is possible because this is +2e, but 2.5 exponent -19 coulomb is impossible because this is not an integer multiple of e। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि ये ई का इंटीजर यानी 1.6 और 3.2 के बीच कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। लाइक 1.7 भी नहीं है, 1.8 भी नहीं, 1.9 भी नहीं, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब डायरेक्ट 1.6 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 2 टाइम्स 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, व्हिच इज 3.2 एक्सपोनेंट -19 कूलम। सो वी वी से दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। This means that it can only come in amounts which are integer multiples of the elementary charge। यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं, आसान है भाई। I would appreciate quick acknowledgement from everyone, please, particularly listening to me from the online community, so we can move forward quickly। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 5 exponent 12 electrons pass through a wire in 12 nanoseconds, calculate the current through the wire। तो 5 एक्सपोनेंट 12 इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से गुजरे ना, लाइक अब आप बता दो कितना करंट गुजरा on a time of 12 nanoseconds। So I equal Q over T, but I need to understand Q is not
number of electrons, like 5 exponent 12 electrons गुजरे हैं ना, 5 exponent 12 कूलम चार्ज नहीं गुजरा है, समझ रहे हो? लाइक क्यू की जगह आप ये नहीं पुट कर सकते। पहले आपको पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। सो द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 exponent minus 19 coulomb, so which is called the elementary charge. Okay, that is the charge of one electron. We call this as the elementary charge. And the total charges, like you have how many electrons? You have this 5 exponent 12 electrons. So you multiply 5 exponent 12 with 1.6 exponent minus 19 coulomb, and you get 8 exponent minus 7 coulombs. Okay, so this is the charge. And time kitna hai bhai? 12 nanoseconds hai na? So nano ka matlab 10 to the power minus 9. So charge is 8 exponent minus 7, and this is 12 exponent minus 9. And now you get current as 66.7 amperes. सही है भाई, सारे मेरे साथ आसान है, चिलिंग सीन है। ये वाला क्वेश्चन जरा जल्दी से आप लोग सॉल्व करें, इसका आंसर बताएं। 3.8 exponent 15 electrons pass through a point in a circuit in 16 milliseconds. Calculate the current at that point. So we have different answers. I equal Q over T. So you have 3 point exponent 15 electrons, ना? तो 15 है या 5 है? 15 है ना? And the charge of one electron is 1.6 exponent minus 19 coulomb. So number of electrons को when you multiply it with the charge of one electron, you get the total charge Q. And the time is 16 milliseconds. So milliseconds about minus 3, and you get the current as 0.038 amperes. सारे मेरे साथ हैं? Are you all with me? Yes, sir. Online community. अच्छा भाई, अब everyone please listen to me. Please try to understand ये जो term charge carrier है, that is a very important term to understand. आगे जाके बड़ी critical equations हैं जो हमें derive करनी है इस term को use करके। What we need to understand is कि ठीक है, like we know it's the electrons that flow, and the positive charges or the protons are pretty much stuck inside the nucleus, so they do not flow. But this is the case in in a a solid metal. कि आमतौर पर हम metal conductors ही use करते हैं ना, जिसमें usually electrons ही flow करते हैं। But it's not necessarily कि हमेशा जो charge carriers हो, यानी जो charge particles flow कर रहे हैं, जिनकी वजह से current आ रहा है, वो हमेशा electrons हो। जैसे आपने शायद electrolytes का नाम सुना होगा। नहीं सुना तो electrolytes are like ionic compounds, जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, पानी में डिसॉल्व करो सोडियम और क्लोराइड के आयन्स अलग हो जाते हैं। सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी लिक्विड में आपने कोई आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व कर दिया, जिससे वो अपने कैटायंस एनायंस में डिसॉल्व हो जाता है, तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप इसको कोई इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह कुछ करा दो, वो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, लाइक दैट कैन हैव करंट थ्रू इट। और इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट की एग्जिस्टेंस की वजह होती है, दैट इज द फ्लो ऑफ आयंस, यू नो, cations, anions. So they are not electrons, they are cations, they are anions, they can be positively charged, they can be negatively charged. तभी तो करंट आ जाता है ना। So what we need to understand, इसीलिए हम डेफिनेशन में कभी भी नहीं लिखते हैं कि current is the rate of flow of electrons. No, 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 because it's not necessarily the electrons that will always be the reason for the current to exist. You can have any charged particle flowing, और वो जो चार्ज पार्टिकल होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड योर चार्ज कैरियर। सो इन एन इलेक्ट्रोलाइट, मूवमेंट ऑफ कैटायंस और एनायंस प्रोड्यूस करंट। फिर सिमिलरली लेट्स से देयर इज अ सिचुएशन जहां पर मैं अल्फा पार्टिकल्स को फायर कर, अल्फा पार्टिकल्स आर आल्सो चार्ज पार्टिकल्स। हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग तुम लोगों ने ओ लेवल से पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस। सो अल्फा पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल्स, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, लाइक उसके ऊपर +2e का चार्ज होता है, क्योंकि उसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं ना। So that is also a charged particle and a positively charged particle. So if that alpha particle is fired and it is passing through a point, तो आप कहोगे ना उस point पे current exist कर रहा है because the charges are flowing. यहाँ पे your alpha particles are the charge carriers. आप समझ रहे हो? So whatever is the charged particle that is flowing और उसके net flow की वजह से like you are getting current, तो वो particle will be your charge carrier. Okay? So a movement of alpha particles produce current.
सो कैटाइंस एनाइंस इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आपका चार्ज कैरियर है। सो चार्ज कैरियर्स आर नॉट ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, सॉलिड मेटालिक कंडक्टर्स में तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। समझ रहे हो मेरी बात? सेमीकंडक्टर्स में होल्स होते हैं चार्ज कैरियर्स, वो भी एक अलग कहानी है, बट अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बस ध्यान में रखो कि हाँ ठीक है, हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन से फ्लो करते हैं, लाइक आई टोटली एग्री विद दैट। बट इसका बस हरगिज मतलब ये नहीं है कि लाइक इट्स ऑलवेज the electrons that are going to be the charge carriers. Okay. In a solid metal conductor, yes, flow of electrons is responsible for current. So वहां पर electrons are your charge carriers. But in case of a metal conductor, charge carriers are electrons. Yes, ठीक है। तो उस केस में टोटल चार्ज जो फ्लो रहा है वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E, elementary charge, which is 1.6 exponent minus 19 coulomb. So you add the total number of charges and you get the total charge in coulombs, which is flowing or which is passing through a point. But for example, in an electrolyte, the charge carriers are cations and anions flowing. So the total charge that flows is number of ions into the charge of one ion. अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि एक आयन का चार्ज फॉर एग्जाम्पल है +1, तो वो 1 e काउंट। अगर उसका चार्ज है +2, तो वो क्या चार्ज होगा? 2। तो एक आयन का चार्ज है 2e। अब नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कर दो टू गेट द टोटल चार्ज। तो समझ रहे हो मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, एक आयन है उसका चार्ज है +3, तो +3e जो है ना, वो एक पार्टिकल का चार्ज हो गया, एक चार्ज कैरियर का चार्ज। अब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ पार्टिकल आर फ्लोइंग टू गेट द टोटल चार्ज इन कूलम्स। थोड़ा सा बेहतर एलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री आना जरूरी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एक आयन है, उसके ऊपर +1 का चार्ज होता है। तो अगर उसमें आपको टोटल चार्ज निकालना है ना, तो नंबर ऑफ सोडियम आयंस को आप मल्टीप्लाई कर दो 1e से, क्योंकि एक सोडियम आयन का चार्ज 1e, 1 का मतलब 1e है, बस ये ध्यान में रखें। सही है। सिमिलरली कैल्शियम एक आयन है जिसका चार्ज होता है +2। ये बिल्कुल याद करने की जरूरत है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। किसी को केमिस्ट्री नहीं आती हो परेशान ना हो, बोले कि बहुत मशहूर है ये, कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है। तो +2 का मतलब +2e। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे टोटल चार्ज निकालना है ना, तो नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस मल्टीप्लाइड बाय 2e। समझ रहे हो ना? लाइक 2e इज चार्ज ऑफ 1 कैल्शियम आयन। अब इसको मैं नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली मेरे पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ही है ना, एएलयू तो है। सही है। तो उसके ऊपर चार्ज है लाइक +3 का। तो अब ये कैसे निकलेगा? टोटल चार्ज के लिए नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इनटू 3 का मतलब 3, और ई का मतलब हर जगह क्या है? एलिमेंट्री। तभी मैं कह रहा हूँ लाइक एक पार्टिकल का चार्ज एलिमेंट्री चार्ज का मल्टीपल ही होगा, और फिर उससे आप टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दोगे टू गेट द टोटल चार्ज इन कूलम्स। सही है भाई, आसान है, वो मुश्किल चीज तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। चलो अब ये क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू, अच्छा ये तो खैर वही समरी, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द करंट थ्रू अ पॉइंट वी मस्ट नो द चार्ज ऑफ वन चार्ज कैरियर। तो एक चार्ज कैरियर का जो भी चार्ज है उसको आप नंबर ऑफ चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द टोटल चार्ज। ठीक है भाई, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस है। इस क्वेश्चन को करते हैं। 9.5 amperes of current has passed through a wire for 2.5 minutes. Calculate the number of electrons that have flown through the wire. तो अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर करंट गिवन है ना, लाइक 9.5 एम्पियर का करंट था और 2.5 मिनट्स के लिए आई नीड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक काम करते हैं, पहले तो आई इक्वल क्यू ओवर टी से लाइक चार्ज की वैल्यू निकालते हैं। I equal Q over T का मतलब Q equal I into T. Current is 9.5 amperes and the time is 2.5 minutes. Again, I must multiply this minute with 60 to get time in seconds. And I'll get the total charge as 1425 coulombs. But ये तो Q मिलता है ना, ये तो coulombs में मिला। अब मुझे charge in coulomb नहीं चाहिए। What they're asking is the number of electrons. तो अगर मैं इस तरह से लिखूं कि भाई total charge is equal to number of electrons into charge of one electron. ऐसा ही total charge is number of electrons into charge of one electron. So let's say capital N is the number of electrons. So E यहाँ multiply हो ना, वहां जाके divide हो जाएगा। ऐसा ही। तो total charge in coulombs is 1425, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने बताया ना, एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 coulombs. So that's 8.9 exponent 20.
ये इसके आगे कूलम मत लिख देना, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी जल्दी बताओ, आर यू ऑल विद मी? Yes, sir. Yes, sir. Boys and girls to the online community listening to us, please respond fast. Everyone, please respond fast. चलो भाई, 2 exponent 10 alpha particles जिनका चार्ज +2e है, वैसे आपको पता होना चाहिए, बट अभी क्योंकि मैंने रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया नहीं तो मैंने क्वेश्चन में खुद ही लिख दिया। जिनका चार्ज +2e है, दे पास थ्रू अ ट्यूब इन 1.9 milliseconds. Calculate the current through the tube. Again, current is q upon t. अब capital Q is total charge, okay? Capital N is number of charges. Small q का मतलब charge of one charge carrier, एक charge carrier कितना charge है। So number of charges are 2 exponent 10 alpha particles, और एक alpha particle का charge कितना है 2e, so e is 1.6 minus 19 coulomb. So this is the charge of one alpha particle, and then you multiply with the total number of alpha particles to get the total charge in coulombs. So 2 exponent 10 into 2 into 1.6 exponent minus 19, that is the total charge in coulombs. And time is 1.9 milliseconds, so that's 1.9 to 10 to the power minus 3. And you get the current in 3.37 exponent minus 6, or 3.4 microamperes. Are you all with me? Is please lemon freeze? Are you all with me? Yes, sir. ठीक है ना, तो मेरे ख्याल तुम लोगों को ये आइडिया समझ में आ गया ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, और फिर करंट कैसे आएगा। ओके, आई थिंक इनफ क्वेश्चंस विद दिस फंडामेंटल आइडिया। अब आते हैं एक एक कॉन्सेप्ट, हाँ ओ लेवल से चल रहा है। अब आते हैं लाइक, ये भी ओ लेवल से नहीं पढ़ा हुआ है, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट का डिफरेंस। ओके, सो व्हाट हैपेंस इन इलेक्ट्रॉनिक करंट इज के वी ऑल नो व्हेन यू कनेक्ट अ रेजिस्टर बाय मींस ऑफ अ वायर to a cell. So you see, for a cell with a negative and positive plates, the electrons start to flow, okay, from negative terminal of the cell to positive terminal of the cell. सबने पढ़ा है ना ये? Yes, This is what happens in reality. यही होता है ना, electrons start to flow from negative to positive. So in electronic current, electrons are moving from low potential to high potential through metallic conductors. But due to some historical reasons, due to some historic reasons, like हम करंट की डायरेक्शन यूं मार्क करते हैं। अगर आपको डीसी सर्किट जो भी आपने मुझसे पढ़ा है उसमें आप देखे होंगे मैं हमेशा करंट ना पॉजिटिव से नेगेटिव मार्क करता हूँ, बिकॉज वी अज्यूम दैट दे आर पॉजिटिव चार्जेस फ्लोइंग। हालांकि कोई तुक नहीं है इस बात की ना, अपेरेंटली तो इट मेक्स नो सेंस कि सर जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस आपके सर्किट में फ्लो ही नहीं कर रहे, बट स्टिल यू आर अज्यूमिंग कि देयर आर पॉजिटिव चार्जेस फ्लोइंग। सो लाइक ऐसी भी क्या अजम्पशन है भाई, ऐसा भी क्या है। तो पहले तो मैं जरा ये बता दूं कि इन कन्वेंशनल करंट we assume that there are positive charges moving from high potential to, यानी positive से negative, high to low जा रहा है। This assumption is due to some historic reasons. तो सर वो historic reasons क्या है? Like, क्या वजह है कि like जो आपका like आप positive से negative current mark कर लो, आप assume कर लो there are positive charges flowing। इसको समझने के लिए अब आपको थोड़ा सा मेरे साथ और फंडामेंटल डिस्कशन पे जाना। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम ये कि आपने फिजिक्स जिस ऑर्डर में पढ़ा है, या आपने साइंस जिस ऑर्डर में पढ़ा है भाई, वो इस तरह से पढ़ा है कि सबसे पहले क्लास 9 में बच्चों को एक चीज पढ़ाई जाती है, बेटा देयर इज अ थिंग कॉल्ड एटम, जिसमें इन द सेंटर यू हैव न्यूक्लियस दैट which is positively charged, that contains protons and neutrons, and you have electrons revolving around the nucleus in a specific permitted pathways that you call as energy level, shell, orbit। ऐसे orbit में इलेक्ट्रॉन घूम रहे, पहले shell में इतने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में इतने इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से ये जो बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले 8वीं क्लास में तो कुछ स्कूल पढ़ा देते हैं, कुछ छठी में पढ़ा देते हैं, कुछ नहीं तो 9th में सबने ही पढ़ लिया हो।
और फिर हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाते पढ़ाते अब जाके लाइक 11th में जाके फिर हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीजें पढ़ाना शुरू करते हैं। लाइक ये हमारे पढ़ाने का ऑर्डर है या आपके पढ़ने का ऑर्डर है। बट अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हिस्ट्री में जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, लाइक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फिनोमिना है, लाइक उनकी डिस्कवरी का ऑर्डर बड़ा डिफरेंट है। लाइक एटॉमिक मॉडल कि एक एटम दिखता कैसा होगा, इसको डिस्कवर करने में हमको तकरीबन 100 साल लगे थे। सही है। 1800, थोड़ा सा गौर से सुनना, काम आएगी तुम्हें, क्योंकि चीजें ना बड़ी, वरना तुम्हें समझ नहीं आएंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लाइक 1800 के मिड से लेके 1900 के फर्स्ट क्वार्टर तक हमने ना स्टेप बाय स्टेप पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, फिर प्रोटॉन डिस्कवर किया, फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। उनमें ज्यादातर नोबेल प्राइज विनिंग एक्सपेरिमेंट थे। फिर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ, वो आपने शायद ओ लेवल से भी डेफिनेटली पढ़ा होगा, वो गोल्ड प्लेट एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड वाला, सही है ना, जिससे न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। सही है ना। तो बिट्स बिट्स में ना छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, और फिर उसके बहुत बार लाइक क्वांटम फिजिक्स अडॉप्ट कर चुके थे हम, लाइक क्वांटम फिजिक्स का पूरा आइडिया डेवलप हो गया। उसके बाद हमें नील बोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे होते हैं, लाइक एंड एवरीथिंग। जबकि इलेक्ट्रिसिटी ना, लाइक ये सब 1800 से 1900 में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो 1700 की कहानी है। तो अजीब सी बात ये है कि लाइक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत डिटेल में डिस्कवर किया, फिनोमिनास को ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर हाइपोथेसिस डेवलप किए, यहां तक कि हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया विदाउट फ्रीकिंग नोइंग व्हाट इज फ्लोइंग। यानी विदाउट नोइंग कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, एटॉमिक मॉडल क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें पता ही नहीं है, बट वी वर एबल टू डेवलप इलेक्ट्रिक सर्किट्स। आप समझ रहे हो मेरी बात? भाई देखो उसका बड़ा लॉजिकल सा रीजन है ना भाई। आमतौर पर हाइपोथेसिस या कोई रिसर्च कब स्टार्ट होती है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई ऑब्जर्वेशन ना, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व बहुत पहले हो गई, बहुत पहले ऑब्जर्व हो गई, कि मतलब भाई लाइटनिंग तो सबको ही नजर आती है ना, बिजली तो कड़कती थी ना हमेशा ही। सही लोगों को साइंस आती हो ना आती हो, बिजली तो कड़केगी ना। कंघा करोगे तो लाइक सर्दियों में बाल चिपकेंगे ना। दिस इज आवर बेसिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना। तो वो ऑब्जर्व बहुत पहले हो गई। अब मैं ना थोड़ा सा लंबा टाइम लूंगा तो मैं कुछ चीजें समझाने में, सही है, लेकिन वो फंडामेंटली बड़े काम आएंगी तुम्हारे। अगर आप इसकी मजे से हिस्ट्री पढ़ो ना, तो आपको रियलाइज होगा यार ये लोग इतने स्मार्ट थे कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिकल्स को अट्रैक्ट और रिपेल होते हुए देखा, और उनको पता था कि ये मैग्नेट्स नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स, तो उन्होंने ना बैठ के उसको रोज के हिसाब से ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से गुजारना शुरू किया, और ऐसे हाइपोथेसिस बनाना शुरू किया कि आप सोच नहीं सकते हो। अच्छा, हमेशा आप में से भी किसी ने कुछ दिनों पहले पूछा था, और मैं भी अपने टीचर से पूछता था कि सर मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज द चार्ज? आखिर ये चार्ज है क्या? क्योंकि आप ये कहते हो ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, प्रोटॉन का चार्ज +1, क्या है मतलब, व्हाट इज द चार्ज? चार्ज की प्रिसाइज डेफिनेशन क्या है? एक तो ठीक है ना, करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करो चार्ज आ जाएगा कूलम में, बट सर व्हाट इटसेल्फ इज चार्ज? आप समझ रहे हो मेरी बात? अब तो थोड़ा समझना पड़ेगा चार्ज है क्या। फिर हुआ ये कि जब वो था टाइम, जब ना इन्होंने एक बेसिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, लाइक यू समझ लो, दो बलून्स बिल्कुल लाइट वेटेड, वो बलून भी उन्होंने कोई पॉलीमर तो था नहीं, किसी रबर से तो बनाया नहीं होगा, लाइक किसी भी ऐसे स्ट्रेचेबल मटेरियल से बनाया। दो बलून्स को थ्रेड से हैंग किया, और फिर उसको कैट फर या किसी दूसरे मटेरियल से ना रब किया। जैसे उसको रब किया ना, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो गए। अच्छा, ये मजाक नहीं है ना, बैठे बैठे दो चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही है, लाइक सही है। या आप कैट फर को उनके सामने लेके जाओ तो ये उसे अट्रैक्ट करना शुरू हो जाए। क्योंकि मजाक थोड़ी लगे, बैठे बैठे अभी चेयर मेरी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाए, हम सारे भाग जाएंगे इस कमरे में। सही है ना। तो लाइक दिस ऑब्जर्वेशन नीड्स एन एक्सप्लेनेशन ना, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब सोचो कितना उनका दिमाग है कि इतनी ऑब्जर्वेशंस के बाद हाइपोथेसिस क्या लेकर आता, आइडिया क्या लेकर आते हैं, कहते हैं हमने ये रियलाइज किया कि दुनिया के हर सब्सटेंस में, गौर से सुनना, दुनिया के हर सब्सटेंस में दो तरह के लिक्विड्स पाए जाते हैं। ठीक है। और उन लिक्विड्स की नेचर ये है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। वो दो लिक्विड्स एक दूसरे को क्या करते हैं?
अट्रैक्ट करते हैं, सुनते रहना। फिर उन्होंने कहा लेकिन आमतौर पर एक एक न्यूट्रल सब्सटेंस में दोनों लिक्विड्स की क्वांटिटी सेम होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो दोनों अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी दो डिफरेंट इंसुलेटर्स को एक दूसरे पर रब किया जाए, तो वो जो दो लिक्विड्स है, लेट्स से भी उनका नाम में एक्स और वाई रखते हैं, उनमें से कोई एक लिक्विड लेट्स से एक्स निकल के एक इंसुलेटर से दूसरे में चला जाता है, जिसकी वजह से पहले तो एक्स और वाई दोनों इक्वल क्वांटिटी में थे ना, तो अब एक में एक्स की क्वांटिटी कम हो गई और दूसरे में एक्स की क्वांटिटी डोमिनेट हो गई, ज्यादा हो गई। तो जिसकी वजह से एक सब्सटेंस में एक्स डोमिनेट करेगा और एक में वाई डोमिनेट करेगा, और अब दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। अभी सुनते रहना। फिर और ऑब्जर्वेशन ली और एक्सपेरिमेंट्स। अब अगली अगली ऑब्जर्वेशन तो मैं किताब में पढ़ के हैरान हो गया था कि यार ये कैसे पहुंचते थे यहाँ तक। कहते हैं एक और चीज हमें रियलाइज हुई कि इनमें जो दो तरह के लिक्विड्स है ना, उनमें से जब हम रब करते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर लिक्विड ही है जो मूव करता है, और जो दूसरा वाला है ना वो फंसा रहता है। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू द अदर सब्सटेंस। आपको समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? दे वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उनको तो नहीं पता ना, तो उन्होंने उसका दो नाम रख दिया। ना कभी देखा ना कभी कोई एक्सपेरिमेंट सुना, बट उनको रियलाइज हो गया कि यार अब वो जो दो लिक्विड्स थे ना, उनकी दो नेचर थी। वो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं लाइक एक कंटेनर से या एक इंसुलेटर से दूसरे इंसुलेटर में। अब उन्होंने कहा ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये एक कुछ पार्टिकल्स हैं जो बाद में पार्टिकल्स में डेवलप हो गया, वो आइडिया लिक्विड्स है कि भाई हर सब्सटेंस में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी है कि वो नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी का नाम रखा चार्ज। उन्होंने कहा दे आर चार्ज पार्टिकल्स। व्हाट आर दे आर चार्ज पार्टिकल्स। और क्योंकि उनकी दो नेचर थी, उनकी क्या थी, उनकी दो नेचर थी, तो अब दो नेचर थी तो दो नेचर का कोई नाम रखना था। तो वो उनका नाम मुस्तकीम और शबाना भी रख सकते थे, वो उनका नाम रियल और इमेजिनरी भी रख सकते थे, ब्लैक और व्हाइट भी रख सकते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रख दिया। सो दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर नथिंग, दे आर जस्ट नेम्स ऑफ टू नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मैं समझ रहे हो, लाइक अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर लाइक ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई मैथमेटिकल मतलब नहीं, इसको समझ लो। समझ रहे हो, लाइक देयर इज नो सच मैथमेट, अनलेस कि तुम जाहिर सी बात है चार्जेस को सम कर रहे हो तो वो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड कर दो, लाइक सम जीरो आ जाएगा तो न्यूट्रल हो गया। बट मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई वेक्टर नहीं है कि जिसको आप बोलो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। दे आर एक्चुअली जस्ट नेम्स ऑफ टू नेचर्स ऑफ पार्टिकल्स, ना टू नेचर ऑफ चार्जेस, के भाई चार्जेस की दो ही नेचर है। समझ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो लड़के और लड़कियां है ना, तो आप उन्हें उनका नाम रख देना भाई ये लड़के और ये लड़कियां है। आप उनका नाम पॉजिटिव नेगेटिव भी रख सकते हो, रखते हो आप रख सकते हो ना भाई, उन्होंने ये नाम रख दिया ये लड़के और लड़कियां। आप समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल, जितना तुम फंडामेंटली इस चीज को समझोगे ना, तुम्हारे लिए उतना आसान है, अच्छा है। कि लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द नेचर ऑफ द चार्ज, कि भाई इलेक्ट्रॉन का पे अगर चार्ज है ना प्लस -1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम का, और प्रोटॉन पे चार्ज है +1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम का, तो दैट इज जस्ट द टू नेचर्स। लाइक वैल्यू दोनों की चार्ज की क्वांटिटी सेम है, लाइक 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। फिर दे रियलाइज कि यार इनमें से कोई एक पार्टिकल है जो कि फ्लो कर सकता है मेटालिक कंडक्टर्स में, ठीक है ना। फिर उन्होंने सेल्स डेवलप किए, यहां तक के सर्किट में करंट आ चुका है, रेजिस्टर में हीटिंग शुरू हो गई है, और उनको नहीं पता है कि यार ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं या प्रोटॉन्स फ्लो हो रहे हैं। सही है। और एक तरफ अलग रिसर्च चल रही है कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि भाई लेट्स अज्यूम देयर आर पॉजिटिव चार्जेस दैट आर फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। क्या फ्लो कर रहा है, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि भाई पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। सही है। अंटिल जे थॉमसन का ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें कैथोड रेस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, और हमें पता लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं लाइक एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स फ्लो नहीं कर रहे। अब जब तक ये आइडिया कंक्रीटली डेवलप हुआ था ना,
ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर हुए हुए कोई 100 साल हो गए। हजारों किताबें छप चुकी थी और वो प्रिंट होके दुनिया में बढ़ भी चुकी। और उस जमाने में ट्विटर और फेसबुक नहीं था कि कोई एक साइंटिस्ट आके इंस्टाग्राम पे एक अपॉलॉजी रील बना दे, गाइस लाइक आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आप लोगों को देखना है, प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स को टैग करें, शेयर करें, हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है। ऐसा कोई सीन नहीं था, सही है। तो आप हुआ ये कि लाइक दे डिसाइडेड टू गो ऑन, दे डिसाइडेड कि भाई जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो। जब सच में गलती हो गई, असल में प्रॉब्लम की गलती इतनी बड़ी थी नहीं भाई। एक रेजिस्टर है ना, रेजिस्टर का काम है जब उसमें से चार्जेस फ्लो करेंगे तो हीटिंग प्रोड्यूस, सही है ना। तो इररिस्पेक्टिव के चार्जेस यू फ्लो करें या चार्जेस यू फ्लो करें, हीटिंग दोनों ही केस में होगी भाई। एक प्रॉब्लम है ना, अगर वो है और फिर भी सिस्टम 100 साल से चल रहा है, इसका मतलब वो इतना बड़ा मसला नहीं है। लाइक ठीक है, आपको पता लग गया ना, आप उसको करेक्ट कर लेना। समझ रहे हो मेरी बात? लाइक तो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। हमने भी जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट की किताबें पढ़ी तो आमतौर पर किताबों के पहले पन्नों पे लिखा हुआ था कि देख भाई, तेरे को भी पता है कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। हमको बेवकूफ नहीं समझना, हमको भी पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, लेकिन तू भी यही समझ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरी किताब में यही लिखा है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। आज भी आपसे एग्जाम में कहा जाए ना करंट मार्क करो, तो सिर्फ करंट का मतलब कन्वेंशनल करंट ही है। कन्वेंशन मतलब रीति रिवाज परंपरा चलती हुई आ रही है, हमारे पुरखों ने जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव मार्क किया तो हम भी पॉजिटिव से नेगेटिव मार्क करेंगे। डीप इनसाइड वी ऑल नो इट्स द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्लोइंग, but we all pretend that there are positive charges flowing through the circuit. आप समझ लो। तो आज भी we go with conventional current, okay? लाइक आज भी सिर्फ करंट का मतलब कन्वेंशनल करंट है, इसलिए इसको ना लाइक ओ लेवल से भी हम प्रीटी श्योर शायद टीचर्स बताते होंगे, बट यहाँ पे इट हैज टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज़ अभी तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ना है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फ्लो कर रहे हैं। अभी करंट बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो अब उस सारी डिटेल में लाइक ये गड़बड़ ना हो जाए कि लाइक आप बोलो फिर ये डायरेक्शन क्यों मार्क हुई हुई, तो बस वो दिस इज आप एज सिंपल एज दिस इज बिकॉज ऑफ सम हिस्टोरिक रीजन। जो मैंने हिस्ट्री बनाई है बड़ा समराइज करके बताया, उसमें कुछ पढ़नी चाहिए हो तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब रिकॉल कर सकते हैं कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट का फर्क, सारे मेरे साथ है। छोटी सी चीज है क्योंकि हमारे पास 4-5 मिनट ही रह गए, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। लाइक आपने रेजिस्टर का नाम तो सुना ही होगा ना भाई, आपने डायोड का नाम सुना है? रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर अलाउज द करंट टू एग्जिस्ट इन बोथ द डायरेक्शन। डायोड की सच जोड़पन ये है कि जैसे ये रेजिस्टर है ना, आपने इसको किसी सेल से कनेक्ट किया, ठीक है, अब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था तो रेजिस्टर को कोई मसला नहीं। वही आप सेल उल्टा लगा दो और करंट यूं चला जाए तब भी रेजिस्टर को कोई मसला। चलिए बात है यार, कर लो यार, करंट मसला। डायोड जो है ना थोड़ा सा नखरालू है, सही है। डायोड का मसला ये है कि डायोड भी टू टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो सर्किट में किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट को एग्जिस्ट करने देगा। सो दैट अलाउज द करंट टू एग्जिस्ट इन वन डायरेक्शन। रेजिस्टर को तो हम सिंबॉलिकली सिंपली एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डायोड में पहले एक एरो बनता है, फिर उसके आगे एक डंडा बनता है, एंड देन दैट बिकम्स द सिंबल ऑफ अ डायोड। इसमें ये जो एरो है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन इन विच इट विल अलाउ द करंट टू एग्जिस्ट। तो अभी लेट्स से अगर आपका एरो टू द राइट है, so it will allow the current to exist to the right, but it is definitely not going to allow the current to exist to the left. ऐसे याद रख लो कि जब आप अगर करंट को यूं लाने की कोशिश करोगे ना, लाइक इफ यू वांट द करंट टू एग्जिस्ट लाइक दिस, तो ये डंडा देख रहे हो ना, ये डंडा है ही इसीलिए कि माँ डंडा वापस भेज देंगे, सही है। तो देसी लॉजिक है, टेंशन नहीं लो। डायोड्स वैसे लाइक आमतौर पर जैसे हम जो रेजिस्टर्स बनाते हैं वो यूजुअली हम ग्राफाइट की या किसी मेटल का ही बन सकता है, but diodes like are made up of a special uh, उनकी एक कॉम्पोजिशन होती है, वो हमारे यहाँ पढ़ाते नहीं, हमारे सिलेबस के स्कोप में नहीं है। लाइक ग्रुप 4 में जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, जर्मेनियम सिलिकॉन, उनमें ग्रुप 3 के एलिमेंट्स या ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को मिक्स करके पी टाइप एन टाइप सब्सटेंस बनाते हैं, फिर उनको मिला के डायोड बनता है। तो बहरहाल वो डिटेल हमारे सिलेबस के स्कोप में नहीं, इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जा रहा। लाइक तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये करंट है ना पॉजिटिव से नेगेटिव,
तो अभी जो आपका करंट है वो मस्त जा रहा है, ऐसा ही है, बिकॉज डायोड का ये जो एरो है ना, और आपके जो करंट की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसे में जो डायोड है ना, वो दैट इज गोइंग टू वेलकम, लाइक इट विल अलाउ द करंट विद जीरो रेजिस्टेंस। यानी इस डायोड की जगह आप देख रहे हो, जैसे ऐसा लग रहा है कुछ लगा हुआ ही नहीं, डायोड विल शो यू जीरो रेजिस्टेंस व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस होना, लाइक कि करंट उसी दिशा में जिस दिशा में आपके पास डायोड का एरो मार्क है। बट अगर आपने होशियारी की और आपने डायोड को पलटने की कोशिश की, और आपने कहा कि अब हम करंट यूं गुजारेंगे, तो डायोड इज गोइंग टू शो यू इनफिनिट रेजिस्टेंस, ऐसे जैसे बीच से तार ही कट गई हो, देख रहे हो आप, जब आप गुजार लो करंट। तो डायोड का ना, नहीं, दो स्टेट्स हैं, या तो भाई साहब इतने दयालु में कह रहे आ जाओ आ जाओ, मसला नहीं है, तुम्हारा ही तो घर है, ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस के साथ करंट को अलाउ कर देंगे। और अगर उल्टी दिशा में आओगे तो इतनी हाई रेजिस्टेंस शो करेंगे कि दैट इज नियरली इक्वल टू इन्फिनिट रेजिस्टेंस। समझ रहे हो आप मेरी बात? सो diode shows zero resistance ideally when it is forward biased, and ideally a diode shows infinite resistance when it is reverse biased. अब इसमें सिर्फ एक चीज समझने वाली है, वो ये है कि जब जीरो रेजिस्टेंस आप शो करते हो ना, तो ये सर्किट शॉर्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? शॉर्ट हो सकता है ना। तो शॉर्ट सर्किट के केस में, सर्किट को शॉर्ट होने से बचाने के लिए हमेशा एडवाइस होती है कि आप एक डायोड के साथ एक सेफ्टी रेजिस्टर लगा दें, ताकि जब ये तो जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा, तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी, तो फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो एक रेजिस्टर हो ताकि सर्किट की ओवरऑल कुछ तो रेजिस्टेंस रहे, ताकि सर्किट शॉर्ट ना हो सके। तो a safety resistor is placed so short circuit may be avoided. यहाँ तक सारे मेरे साथ है? सकीना सर, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम जाके। लाइक इट इज द एबिलिटी of a conductor to produce heat when current is passed through it, ना? सर बहुत लर्न हो गया, आज बहुत लर्न हो गया, आज बहुत लर्न हो गया, बस बहुत लर्निंग हो गई। अच्छा, वैसे आपस की बातें मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा दे, और बांग्लादेश और इंडिया न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से हरा दे, बड़े मार्जिन से 100-150 रन से, और फिर हम 300-400 रन बनाए और बांग्लादेश 100 रन पे आउट हो जाए, सही है, देन वी आर थ्रू गाइस। लाइक तुमने क्या फर्स्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो कर रहे हो? तुम ऐसे सरप्राइज होके देख रहे हो, लाइक बस फ्यूज तो उड़ जाएगा ना, सर्किट तो डिस्कनेक्ट ही हो जाएगा फिर। चलो ये करंट, ठीक है, चलो भाई, लेट्स कीप इट टिल हियर।